I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole. Welcome my students once again. Today we shall do some multiple choice questions on the poem Animals. This poem is written by Walt Whitman. Earlier you listened to the text of the poem. Now it is turn for doing some MCQs based on this poem. Students, this year 50% MCQ type questions will be there in your exam. So read the poem again and again and do some MCQ type questions on every poem that is there in your syllabus. I have already made some videos on MCQ questions on different poems which are there in class 10th CBSE and Haryana board syllabus. Okay, you can go in the playlist of my YouTube channel Easy English NCERT Learning with Chandrapal, and you can prepare well for your examinations in your in advance. So let's start your poem Animals, written by Walt Whitman. Walt Whitman, was born in 1819 and he died in 1892. He is an American poet and he is the father of American poetry as well as the father of फ्री वर्स इन पोइट्री. तो बच्चों, आपकी पोएम एनिमल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लेने जा रहा हूँ. हाउ डू द एनिमल्स अपीयर टू द पोइट. हाउ, कैसे पोइट को एनिमल्स हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, कैसे लगते हैं. तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कंफ्यूज एंड पीसफुल, सेकंड ऑप्शन काम, पीसफुल एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, C option is confused and sad, and D option is none of the above. So here our B option is the correct answer. The animals appear to the poet calm, peaceful and self-satisfied. कवि को जो एनिमल्स हैं वो बड़े ही शांत, बड़े ही शांति प्रिय और बड़े ही आत्म संतुष्ट है वो लगते हैं. तो आपको मैं आंसर्स हैं वो दिखा देता हूँ. फर्स्ट के अंदर है वो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू द एनिमल्स शो टू द पोएट, व्हाट डू द एनिमल्स शो टू द पोएट. पोएट को एनिमल्स क्या दिखाते हैं. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज वेविंग टेल, अपनी लहराती हुई टेल उसको दिखाते हैं. सेकंड, टीथ, अपने दांत दिखाते हैं. थर्ड, मिरर टू हिम, वो उसको आईना दिखाते हैं. एंड रिलेशन टू हिम, या जो एनिमल्स हैं वो पोएट को अपना संबंध है वो शो करते हैं. तो यहाँ पर डी इज़ आवर राइट आंसर. ओके, इन सेकंड क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर. यू कैन शो इन द आंसर्स. ओके, D is the right answer here. Okay, you can take a screenshot of the answers. Okay, now question number 3. What or where does the poet wish to live with. पोएट है वो कहाँ पर या किसके साथ या किस चीज़ के साथ उसकी इच्छा है रहने की. ऑन ए टावर, फर्स्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन इज एनिमल्स. सी ऑप्शन इज the poet want to live in the forest or the poet want to live among the mountains. So here our
B option is the right answer. The poet wishes to live with. Let's take question number 4. Who do always complain about not able to do their duty to God? इस पोएम के अनुसार कौन अपनी भगवान के प्रति ड्यूटी को ना करने के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं? ऑप्शन ए बर्ड्स, बी ऑप्शन एनिमल्स, सी ऑप्शन फिशेस एंड डी ऑप्शन ह्यूमन बीइंग्स. तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मैंने फिशेस जानबूझ के दिया है. फिश का जो प्लूरल है वो फिश ही होता है, लेकिन व्हेन देयर इज मोर देन वन स्पीसीज ऑफ फिश देन वी यूज fishes also. Okay, that is why I have deliberately written fishes here. तो here कौन कंप्लेन करता है भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी को ना कर पाने के अंदर? तो बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेस और ह्यूमन बीइंग्स. तो here D is the correct answer because human beings are always complaining about not they been able to do their duty to gods. क्योंकि हम बहुत बार ऐसे काम करते हैं कि भगवान अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं और फिर हमें पछतावा होता है उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड्स देयर सिंस? सिंस इविल्स होती हैं, बुराइयाँ. एनिमल्स का अपने उनके द्वारा किए गए बुरे काम के प्रति क्या एटीट्यूड होता है? ए ऑप्शन दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस, B option they feel sad, C option they keep calm and D option none of the above. So here in fifth question A is the right answer. Animals don't weep for their sins. Animals हैं, उन्हें अपने बुरे काम के लिए रोना नहीं पड़ता. जब उन्हें उनसे कोई बुरा काम हो जाता है तो उन्हें रोना नहीं पड़ता. ओके, इन फिफ्थ क्वेश्चन ओके ए इज द राइट आंसर. ओके, यू कैन सी हियर, यू कैन चेक द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 6. हु हैज़ नेवर लर्न टू नेल बिफोर दोज ऑफ देयर काइंड हु लिव्ड 1000 years एगो? किन्होंने अपने जैसे लोग जो उनसे हजारों साल पहले रहे थे उनके प्रति नेल होना, घुटनों के बल बैठ जाना, यानी कि उनको ग्रीट करना नहीं सीखा है? फर्स्ट ऑप्शन इंसेक्ट्स, सेकंड ऑप्शन एनिमल्स, थर्ड ऑप्शन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज बर्ड्स. तो हेयर बी इज द राइट आंसर. इन सिक्स्थ एनिमल्स हैव नेवर लर्नड. ओके, animals have never learned to kneel before those of their kind who lived 1000 years ago. Okay, in small mistake is there, I want to clear it. Okay, here have will come, not has. Okay, I think it is locked. I will correct it later on. Question number 7. What shows that the poet loves animal? कौन सी चीज़ पोएम में शो करती है कि पोएट है वो एनिमल्स को लव करता है, प्यार करता है? ऑप्शन ए ही लुक्स एट एनिमल्स फॉर शॉर्ट टाइम, वो थोड़े समय के लिए एनिमल्स की तरफ देखता है. बी ऑप्शन इज ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो बहुत बार लंबे समय तक एनिमल्स की तरफ देखता रहता है. ही फीड्स द एनिमल्स, वो एनिमल्स को फीड करता है. और नन ऑफ द अबव. ओके, हियर फीड्स विल कम. ओके, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन. ही फीड्स द एनिमल, वो एनिमल्स को फीड करता है. ओके, तो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट एनिमल्स long and long. Okay, question number 8. What is the meaning of the word placid? Okay, this question is very important. Placid means peaceful, clumsy, greedy or frightened. Okay, so here A is the right answer. Okay, in 8th, okay, A is the right answer. You can check it. 8th, A is the right answer. Placid means peaceful here. क्लमजी भद्दा होता है, ग्रीडी लालची और फ्राइटेंड है वो डरा हुआ होता है.
question number 9. Okay, coming to question number 9. What mania do animal possess, okay, और suffer from, किस प्रकार का पागलपन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर. व्हाट मैनिया डू ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम, ह्यूमन बींग्स के अंदर किस प्रकार का जो पागलपन है वो पाया जाता है. हेयर फर्स्ट ऑप्शन, दे आर वायलेंट, ओके, और दे डू वायलेंस, वो हिंसा करते हैं, ओके. दे हैव मैनिया फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो भौतिकवादी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. और दे हैव मैनिया फॉर लस्टफुल लाइफ, वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं. और दे आर मैड आफ्टर वॉर, या फिर वो युद्ध का, वो बहुत ज़्यादा युद्ध करते हैं. तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, दिस आंसर इज़ द करेक्ट आंसर. ह्यूमन बीइंग सफ़र फ्रॉम मैनिया फॉर possessing more and more materialistic things. Question number 9 now. So students, I have made a playlist for my YouTube channel and I have divided all the videos class wise and book wise. You can go in the playlist, okay, if you want to search out any chapter, any question, okay, it will be very helpful for you. And those who are new to my channel, they can subscribe my channels, okay, and they can watch each and every chapter of their choice on my YouTube channel and also compete for their competitive exams with the help of my channel. Question number 10. What do animals not whine about? Okay, whine about होता है to cry about. Animals हैं वो किस चीज़ के प्रति रोते नहीं हैं. Their place, अपने स्थान के बारे में. देयर फीडिंग, जो उनको खाना मिलता है उसके बारे में. देयर एपिटाइट, अपनी भूख के बारे में. और देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के बारे में. तो हेयर डी इज़ द राइट आंसर. एनिमल्स डोंट वाइन अबाउट देयर कंडीशन और अबाउट देयर सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट क्वालिटीज़ हैव द ह्यूमन बीइंग गिवन अप? कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो मनुष्य ने छोड़ दी है. इनोसेंस, उन्होंने अपना भोलापन है वो त्याग दिया है, छोड़ दिया है. ओके. काइंडनेस, उन्होंने अपनी दयालुता को छोड़ दिया है. ट्रुथफुलनेस, उन्होंने अपनी सच्चाई को छोड़ दिया है. और ऑल द अबाउट हेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, ह्यूमन बीइंग्स हैव गिवन अप ट्रुथफुलनेस, उन्होंने सच्चाई को छोड़ दिया है. आजकल आप देख रहे होंगे कि एवरीवन, नोबडी टेल्स द ट्रुथ. ओके, पीपल टेल लाई आफ्टर लाई टू अदर्स. लोग झूठ के बाद झूठ बोलते हैं. एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हु अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द बेटर क्रिएचर्स? पोएट के अनुसार कौन बेटर क्रिएचर्स हैं, कौन है वो अच्छे जीव हैं? ह्यूमन बींग्स अच्छे हैं, एनिमल्स अच्छे हैं. सी इज़ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जैसे हैं या नन. ओके, तो हेयर एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स. ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर इन 12. बी इज़ द करेक्ट आंसर. यू कैन चेक इन द आंसर बुक. ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर इन 12. क्वेश्चन नंबर 13. हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स? तो ओके, दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन. लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन बेरीमैन और वॉल्ट विटमैन. So I can remind you, Leslie Norris poem in your syllabus is A Tiger in the Zoo. Robert Frost, 2 poems are there in your syllabus in class 10th. Okay, The Fire and Ice, A Dust of Snow and Fire and Ice. The Ball poem is written by John Berryman and Walt Whitman wrote this poem, Animals. Question number 14. Who is the speaker in the line, I think I could turn and live with animals? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. तो इस लाइन के अंदर है वो स्पीकर कौन है? अमांडाज फादर, अमांडा का फादर है. अमांडाज मदर, अमांडा की मदर है. जॉन बेरीमैन है या वॉल्ट विटमैन है. तो हेयर डी इज़ द करेक्ट आंसर. आई हेयर रेफर्स टू द पोएट वॉल्ट विटमैन. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइन? ओके, वाइन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? ओके, वाइन
तो हेयर ए बेवरेज एक पेय पदार्थ होता है जिसको शराब बोल देते हो आप। क्या वाइन ये वाला वाइन है, या क्राई चिल्लाना, या शाउट, ओके, या फिर नन। तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर इन 15. B is the correct answer. I can show you in the answer books. In 15, B is the correct answer. Okay, question number 16. Whom does the poet admire in the poem Animals? Poet है वो किसकी प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। admire और praise both are same words. Okay, synonyms are there. तो first option is snakes, B option is animals, C option human beings, and D option birds. So here the poet praises animals. Okay, B is the correct answer. Question number 17. Why does the poet want to live in the company of animals? Poet है वो animals की company में क्यों रहना चाहता है? A option is human beings have dropped many virtues. Human beings ने बहुत सारे गुण हैं वो छोड़ दिए हैं. B option is ह्यूमन बींग्स ऑलवेज क्राई अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमन बींग्स अपनी स्थिति का रोना रोते रहते हैं। या ह्यूमन बींग्स पोजेस ए मैनिया फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ह्यूमन बींग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ें हैं वो लेना चाहते हैं, या ऑल दी अबव। तो हेयर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज़ बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच, ओके, और लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस उसके ऊपर बेस्ड है. तो आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. तो आपने अलंकार को पहचानना है. सिमिली है, बी इज एसोनेंस है, सी मेटाफर है, या डी पर्सोनिफिकेशन है. तो पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है, मेटाफर और सिमिली है वो रूपक और उपमा अलंकार होते हैं. और यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिकॉज हेयर रेपिटिशन ऑफ ए वोवल साउंड इज देयर. आई थिंक, ओके, आई थिंक, ओके, एवरीवेयर दिस आई साउंड इज देयर. आई थिंक, ओके, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. ओके, तो एवरीवेयर sound I is repeated, so here ansonance is the correct answer here in question number 18. So student, this is all about multiple choice questions of the poem Animals. You can see, okay, you can see your answer here. Okay, so student, you should try for multiple choice questions only when you have read the poem, you have read the text of the poem completely, you have done all the textual questions, only it will be helpful. Okay, and if you have not watched these videos, you can watch on my YouTube channel. Okay, thank you so much and have a nice day.